Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are here to discuss chapter number 2 of your geography book, Forest and Wildlife Resources. Okay, a similar chapter you have studied in class 9th as well. एक ऐसा ही chapter आप लोगों ने class 9th में भी discuss किया था. Okay, class 9th में भी आपने ऐसा ही chapter पढ़ा है and it was natural vegetation and wildlife. तो आपने ये देखा ही था कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन आवर कंट्री एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट किसका पार्ट होते हैं? फॉरेस्ट आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. फॉरेस्ट किसका पार्ट होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट होते हैं. व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द वेजिटेशन और प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन without any kind of human interference. Okay? कोई भी प्लांट लाइफ किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स जो ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रो करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी तरीके की ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. और जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. क्यों पार्ट होते हैं फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन का? बिकॉज फॉरेस्ट जो है वो भी अपने आप ग्रो होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन की मदद के. ओके, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ मीन्स द फौना, द एनिमल लाइफ दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, both of these things, whether they are forest or we are talking about the animals, both of these things are resources. India is well endowed with all the different kinds of forest and wildlife. There are many species of birds, insects and different kinds of animals. बहुत सारे तरीके की, बहुत एक rich India की diversity है in the matter of forest and wildlife resources. ठीक है? तो इस चैप्टर में we are going to study about the flora and fauna in India. We will be studying about the various species and also we will study about their conservation. आज ये जो resources हैं, ये हमारे लिए important तो बहुत हैं, they are very much important for us. But today with the increasing population and with the increase in human activities like deforestation, ओवरग्रेजिंग, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज की वजह से जो कि ह्यूमन बींग्स की वजह से ही परफॉर्म की जा रही है, कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज की वजह से हमारे फ्लोरा एंड फौना पे बहुत ही नेगेटिव या फिर एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है. ओके, हमारी एक्टिविटीज की वजह से वी रिक्वायर मोर एंड मोर व्हीकल्स. ओके, सो the vehicles cause pollution. That pollution is adversely affecting the environment. Okay, so this is disturbing the ecological balance. ये हमारी ecological balance को disturb कर रहा है. And in this chapter we are going to talk about all the issues that are related to the flora and fauna, the issues that our flora and fauna is facing. Okay, चलिए, so let us talk about flora and fauna in India. I hope you know the meaning of the two words flora and fauna. Flora means the plant life of an area. किसी भी region, किसी भी area में जो भी plants, चाहे वो herbs हो, shrubs हो, okay, grass हो, किसी भी तरीके के plants हो, बड़े बड़े trees हो, all the different kinds of plants that exist in a particular area is known as flora. If we talk about fauna, what is fauna? The animal life. Fauna क्या है? The animal life of a particular region. किसी भी particular region की animal life. Okay? चाहे वहां पे जितने भी type of birds हो या फिर insects हो, reptiles हो, mammals हो, वो सब हमारी fauna के अंदर आएंगे. अब हम इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, when we talk about India's flora and fauna, you will be glad to know that India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारी तरीके की स्पीशीज अवेलेबल हैं फ्लोरा एंड फौना की.
India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. चाहे हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की भी कई सारी स्पीशीज, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की अलग, मेडिसिनल हर्ब्स की अलग, अलग अलग तरीके के प्लांट्स की कई सारी स्पीशीज इंडिया में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ही एनिमल की वैरायटीज भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। सो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो इस चैप्टर की मैं बात कर रही थी क्लास 9th में जो आप पढ़कर आए हैं, ओके इस चैप्टर में आपने देखा था कि कई सारे, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ अदर फॉरेस्ट आर देयर इन आवर कंट्री। ओके, उसके साथ साथ ही इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ओके, and based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, इसके बेसिस पे हम लोग हमारी कंट्री को, हम एग्जिस्टिंग प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में और एनिमल को भी डिफरेंट स्पीशीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक तो ये याद रखना है कि कौन, ये क्लासिफिकेशन हमें कौन देता है। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की फुल फॉर्म एक आप लोग याद कर लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, किन स्पीशीज में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, वर्ड जो है वो ही सजेस्ट कर रहा है कि सब चीज यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल्स को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, या ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम नहीं है, इट इज क्वाइट नॉर्मल है जिनकी पॉपुलेशन, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, जैसे कि हमारे काउज, बफलोज, ये सब हो गए, साल, पाइन, रोडेंट्स एटसेट्रा। इसमें ट्रीज भी आ गए और एनिमल्स भी हम लोगों ने ले लिए। तो चाहे वो फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, ऐसे ट्रीज या ऐसे एनिमल्स जिनकी स्पीशीज का नंबर नॉर्मल है, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल, इज नोन एज द नॉर्मल स्पीशी। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्पीशीज कहेंगे उन्हें। ओके, सेकेंड इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। सेकेंड क्या है हमारे पास, एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट, जो खत्म होने की कगार पर है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज आर ब्लैक बक, ओके, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकर, संगाई, okay, and etc. There are many animals, there are many plants that are about to finish, जो कि खत्म होने वाले हैं। अगर हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए तो दे विल फिनिश वन डे, एक दिन ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एंड दैट डे इज नॉट सो फार, और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ओके, थर्ड इज वल्नरेबल स्पीशीज। थर्ड क्या है हमारे पास, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल वर्ड आपको पता होगा कि वल्नरेबल यूज किया जाता है फॉर समथिंग दैट इज मोर प्रोन टू बी कॉज्ड डेंजर और टू बी हार्म्ड। ओके, कोई भी ऐसी चीज जिसे बहुत जल्दी नुकसान हो सकता है या जो हर्ट हो सकती है, किसी डेंजर में आ सकती है, दैट थिंग इज नोन एज वल्नरेबल स्पीशीज। ओके, मतलब उस चीज को वल्नरेबल कहा जाता है। तो यहां पे जब हम वल्नरेबल स्पीशीज की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वल्नरेबल स्पीशीज, तो हम क्या लेंगे इसमें, ये वो स्पीशीज हो जाएंगी जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है टू द लेवल्स दैट इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। हालांकि ये लोग अभी तक एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आए हैं, बट अगर इनकी पॉपुलेशन इस तरीके से ही धीरे धीरे गिरती रही तो एक दिन ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे और उसके बाद ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल खतरे की कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके, खत्म होने की कगार पर है जो,
और वल्नरेबल वो है जो कि एंडेंजर्ड में आने की कगार पर है, बिल्कुल किसी भी टाइम ये एंडेंजर्ड में शामिल हो सकते हैं, बिकॉज ऑल दो स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइन, ऐसी सारी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है, और वो कभी भी इसके अंदर मूव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वल्नरेबल स्पीशीज कहेंगे। ओके, एंड देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा, राइट। द फोर्थ कैटेगरी दैट वी आर हैविंग इज रेयर स्पीशीज। ओके, रेयर स्पीशीज क्या होती हैं, अब ये ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। Okay, the species that are with a very small population and they may also move into the endangered, जो भी किसमें मूव कर सकते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में मूव कर सकते हैं, अगर नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं वो उन्हें अफेक्ट करते रहे तो, अगर हमने प्रॉपर उनके लिए कंजर्वेशन मेजर्स को नहीं अपनाया और अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यूड रहे, ओके, सो one day they can move into endangered और vulnerable category. Okay? इसके जो examples हैं ऐसी species के वो हैं Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. ये ऐसे animals हो गए जिनकी population already क्या है, बहुत कम है। Okay? There are very rare species, बहुत ही rarely ये मिलते हैं। सो वैसे भी कोई चीज अगर हमारे पास कम है, सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, वो तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे क्या करें, प्रोटेक्ट करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ दीज स्पीशीज, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सी देम इन द फ्यूचर। ठीक है, हमारी जो अपकमिंग जनरेशंस होंगी, हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी, वो इन स्पीशीज को देख ही नहीं पाएंगी, राइट। नंबर 5 इज एंडेमिक स्पीशीज। Okay, so what are endemic species? These are the species which are only found in some particular areas. ऐसी species जो किसी एक particular area में ही मिलती है, they are not found globally, ठीक है, globally नहीं मिलती, they are found in some particular areas, कुछ particular areas में ही मिलेंगी और usually उन जगहों पर मिलेंगी that are isolated, जिन्हें अलग किया हुआ है by some natural और geographical बैरियर्स। ठीक है, ऐसी स्पीशीज के एग्जाम्पल्स हैं अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब ये जो भी सारी स्पीशीज हैं ये पर्टिकुलर रीजन्स में ही मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर फाउंड इन द आइलैंड, ओके, सो दे आर आइसोलेटेड और दे आर सेपरेटेड बाय सम नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर। Okay, so these type of species also are found as they are found in some particular places, so that is very important for us to take care of them. Okay, last is extinct species. Extinct species कौन सी होंगी, ये वो species होंगी जो कि किसी भी local area, region, country या continent से extinct हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, अब इनका कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, रीजन वाइज भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं कुछ चीजें, जैसे क्रो की बात करें, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरी लोकेलिटी में अगर क्रो देखने को नहीं मिलता तो मैं क्या कहूंगी, क्रोज आर एक्सटिंक्ट इन माय लोकेलिटी, देयर आर नो क्रोज इन माय लोकेलिटी। ठीक है, मेरी लोकेलिटी में कोई क्रोज नहीं है अब, तो मेरी हो सकता है कि वो मेरे पर्टिकुलर लोकेलिटी से ही गए हो सकता है कि स्टेट में वो हो या पूरी कंट्री में तो हो ही सही, राइट। सो कोई भी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं फ्रॉम अ लोकल एरिया, अ रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द इंटायर अर्थ, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो पूरी अर्थ पे से खत्म हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहा जाता है। और उनके एग्जाम्पल्स हैं एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक एटसेट्रा। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए आ रहा है, दैट इज व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज such fearful depletion of the flora and fauna। मैंने आपको ये तो बताया ये था कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, आज हम ग्रीडी ह्यूमंस की वजह से हमने क्या किया है, हम ये भूल गए कि we have borrowed this land and we have to share it with the other creatures,
ओके हमें इस लैंड को अदर क्रीचर्स के साथ, अदर एनिमल्स, अदर स्पीशीज के साथ, प्लांट्स के साथ, सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स के साथ हमें ये लैंड शेयर करना है, ठीक है। बट हम ये चीज भूल जाते हैं एंड वी यूज द लैंड, वी आर यूजिंग द अर्थ फॉर आवर ओन ग्रीड, okay, and this has caused depletion of our natural resources along with the flora and fauna. तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीट होने के लिए? दे आर, फर्स्ट इज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला है एक्सेसिव कंजम्पशन। ये जो बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा आज जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, सो फॉर सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और बेटर इफ आई से द ग्रीड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आज एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है रिसोर्सेज का, दिस कंजम्पशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना। जैसे कि हम लोग वुड काटते जा रहे हैं, वी नीड वुड, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. And for all these things, we are cutting down the trees. We are recklessly cutting down the trees. And this is known as deforestation, when we recklessly cut down the trees and satisfy our own greeds without even thinking about the forest. Okay? सेकेंड है द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज। ओके, सेकेंड क्या है? एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। रेलवेज का एक्सपैंड होना, राइट, रेलवेज का एक्सपैंड होना। इसके अलावा रेलवेज एक्सपैंड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है पेड़ क्या होंगे? कटते चले जाएंगे। नाउ प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड। अगर किसी एरिया में फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, प्लांट लाइफ वहां की कट हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे क्या होगा? एनिमल लाइफ भी एडवर्सली अफेक्ट होगी। ओके, द एनिमल लाइफ विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, एग्रीकल्चर, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो वी नीड मोर एंड मोर फूड, एंड फॉर कन्वर्टिंग more and more land into agricultural land, we are cutting down the trees. Okay, commercial और scientific forestry को follow करना, mining activities को follow करना, इन सब चीजों की वजह से भी we are cutting down the forest, and the cutting down of forest is adversely impacting it is adversely affecting the wildlife resources of an area. Large scale development देखा गया है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का और माइनिंग एक्टिविटीज का। अगर प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, है ना, या फिर जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं या फिर माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनकी वजह से भी पेड़ कटते हैं। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। आज क्योंकि ह्यूमन ग्रीड्स की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, सो नाउ दे हैव बिकम अवेलेबल टू अ फ्यू नंबर ऑफ पीपल। आज रिसोर्सेज केवल कुछ लोगों के पास ही अवेलेबल हैं, ठीक है, आज रिसोर्सेज केवल कुछ लोगों के पास ही अवेलेबल हैं, right? This has created a gap in the society, this has created a division in the society. Okay, it has divided the society into two groups, the people who have and the people who do not have. Okay, have with haves and have nots, right? So there is unequal access of resources, इनइक्विटेबल कंजम्पशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, कोई अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहा। एवरीबडी वांट्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। सब लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा स्टेप भी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है? द एनवायरमेंट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओके, हम लोग कहने के लिए प्लांटेशन वगैरह कर तो लेते हैं, बट वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. Okay, so this is adversely affecting the environment, right? So I hope all the topics that we covered in this video are clear to you all. The rest topics related to this chapter we'll be covering in our next video. So for watching that, stay connected. Thank you.